Hello, listeners. I am Nishta Stapak from Indore. I'm a microbiologist and an entrepreneur trying to make lives better. We, the millennials, crave for an ethical brand more than anyone. And today, we have the power to bring the change and be a part of a greater cause. In today's world, where companies are running after profits, what distinguishes Amway is its ethics, where people, society at large, as well as the environment is benefited. Luckily, we have with us the man with a plan. He has traveled worldwide, lived in various parts of the world, has a massive experience in consulting world, is an IIT alumnus, and knows intimately about Amway business and the things and practices that makes this brand so special. And trust me when I say this, there is no one better suited to deliver this very special episode other than our star podcaster, our mentor, Mr. Sumeet Bahadur. थैंक यू निष्ठा, थैंक यू फॉर द वार्म इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कई बार हम लोगों ने ये स्टेटमेंट सुना है पहले भी, दैट पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। इन शुरू में मैं समझता था, इनिशियली आई थॉट दैट दिस अप्लाइज ओनली टू ह्यूमन इंटरेक्शंस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। लेकिन पैंडेमिक के समय जो मैंने देखा, हाउ फैमिलीज गॉट ब्रोकन अप बिकॉज ऑफ द सडन डेथ ऑफ सम पीपल इन द फैमिली। बहुत दर्दनाक सिचुएशंस हमारे टीम्स में हुई, जहाँ पर लोगों ने अपने हस्बैंड या वाइफ को खो दिया, अपने पेरेंट्स को खो दिया, एंड किड्स वर लेफ्ट विदाउट पेरेंट्स। सो इस समय लॉट ऑफ कंपनीज एंड लॉट ऑफ कॉरपोरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज़ अ टाइम टू एक्चुअली स्टेप बैक फ्रॉम सिंपली मेकिंग प्रॉफिट्स। केवल प्रॉफिट कमाना किसी भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य नहीं हो सकता, बट दे ऑल्सो मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज more seriously. So आज की तारीख में देखें तो corporate India has started talking a lot about the need for compassionate capitalists, and a lot is being written about how large companies and businesses need to have a little bit more humanistic, caring and compassionate approach towards society in giving back what they have earned and making this world a better place for everyone to live. ये दुनिया बेहतर होनी चाहिए। Large companies जो है, they should make this world a little bit better to live in. तो आज मैं बात करना चाहता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, हाउ इट कनेक्ट्स एंड हाउ इट रिलेट्स टू आवर एमवे बिजनेस। मोस्ट रिसेंटली व्हेन आई वाज टॉकिंग टू मिलेनियल्स अबाउट आवर बिजनेस मॉडल एंड इट्स एडवांटेजेस, तो मैंने क्या देखा कि दे आर ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन एथिकल सस्टेनेबल वेज ऑफ डूइंग बिजनेस रादर देन मेकिंग प्रॉफिट जस्ट एट एनी कॉस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन देयर एज ग्रुप ऑल्सो फील दैट प्रीवियस जनरेशंस, पुरानी जो जनरेशंस हैं, they have led this whole society, maybe due to lack of awareness or interest, उनको इतना पता नहीं होगा, but they have led all of them down to this current path towards ecological disaster, जहाँ climate change हो रहा है, polar ice caps melt कर रही हैं, and the level of carbon emissions in the Earth's atmosphere have reached a record high, and the climate reports are very damaging. So anyway, all of these things they feel little bit let down, और उनको लगता है कि there is a lot more to be done, and they have become social activists. So millennials जो है, ये हमारी generation which is between 20 to 35 years old, they are the largest demographic in our Indian middle class. देखा जाए तो they are almost 40% of our total population. और अगर हम उनको combine कर देते हैं with the Gen Zs are the people who are below 20 years old, then it's almost half of our total population. तो इन दोनों जनरेशन्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, मिलेनियल्स को जो 20 से 35 साल की उम्र के हैं, एंड जेन जेड या जेन जी बिलो 20, देन दिस इज़ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन। और ये दोनों जनरेशन्स हैं, दे बेसिकली आर गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग मेजरली टू आवर नेशनल जीडीपी ओवर द नेक्स्ट डेकेड। तो हमें समझना ज़रूरी है कि ये लोग किस प्रकार से डिफरेंट हैं, एंड व्हाट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डू दे हैव कंपेयर्ड टू ऑल द अदर जनरेशन्स। आइए इसको समझते हैं। पहली बात तो मिलेनियल्स जो हैं, दे आर द फर्स्ट जनरेशन इन आवर लाइफ टाइम हु हैव ग्रोन अप विद टेक्नोलॉजी एंड डिजिटली। और ये लोग जो है ना, दे प्रेफर टू डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन अ स्मार्टफोन और अ कंप्यूटर। इनकी मोस्ट ऑफ द एडल्ट लाइफ दे हैव बीन टोटली प्लग्ड इनटू सोशल मीडिया। ज़्यादातर इनका जो एडल्ट लाइफ है उसमें वो सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं, विच मीन्स द डिजिटल वर्ल्ड इज़ देयर नेचुरल हैबिटेट, because they have social networks, they have wide social networks. इसी वजह से इनके जो social circle है, the people they know of is at least 5 to 10 times larger than any other generation in the past.
मिलेनियल्स की खास बात क्या होती है कि दे लव इंटरेक्शन, दे केयर अबाउट अदर पीपल्स फीडबैक एंड रिव्यूज। लोग क्या सोच रहे हैं उनके आसपास, क्या फील कर रहे हैं, किस तरफ हवा जा रही है। इट्स नेचुरल फॉर देम टू शेयर, कमेंट एंड लाइक कंटेंट digitally, especially for the products and services they enjoy, which is why almost all the brands and companies today बिल्कुल routinely they use millennials to improve their marketing campaigns for their product services, both offline and definitely on social media. So हम लोग जो है अपने एमवे बिजनेस में वी ऑल्सो ट्राई टू एंगेज विद देम, क्योंकि रिसेंटली मैं पढ़ रहा था फोर्ब्स मैगजीन में कि मिलेनियल्स आर मोर लाइकली टू बाय एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी जहाँ पर जो ब्रांड है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनसे कनेक्ट करती है और उनके सोशल और पीयर ग्रुप से भी कनेक्ट करती है। दे हैव सम मोर पेक्युलियरिटीज़ ऑल्सो, तो थोड़ा सा उनको अलग करती हैं। जैसे उनका लाइफस्टाइल बहुत ही एक्टिव है, फिजिकल एक्टिविटी उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है। दे ऑल्सो आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू गेट मैरिड एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और उनके कुछ बहुत ही यूनिक स्पेंडिंग पैटर्न्स भी हैं। मैंने क्या देखा है कि 3 out of 4 millennials, almost 75%, they prefer to spend money on experiences rather than product. जिंदगी जीने में और जिंदगी enjoy करने में पैसा खर्च करना चाहते हैं rather than just buying something and possessing and acquiring it. जैसे होता था ना पहले, हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ आ जाती थी तो उसको हम संभाल कर रखते थे किसी स्पेशल ओकेजन के लिए, तब यूज़ करेंगे। मिलेनियल्स का क्या है कि भाई दे डोंट वांट टू जस्ट बाय गोल्ड ज्वेलरी एंड पुट इट इन द लॉकर, दे वांट टू वेयर इट एंड दे वांट टू एंजॉय इट, एनी ड्रेस, एनीथिंग दैट दे बाय। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी है कि बिकॉज उनका जो अवेयरनेस लेवल है, बिकॉज दे अवेयरनेस लेवल इज सो हाई अबाउट द सोसाइटी, वर्ल्ड एंड एनवायरनमेंट, सो उनका जो मोटिवेशन होता है बिहाइंड बाइंग अ प्रोडक्ट हैज ऑल्सो शिफ्टेड फ्रॉम जस्ट मटीरियलिस्टिक पर्पस। उनके लिए परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस जहाँ पर that product and service is contributing something back to the society, that has become the new trend. So they consider social responsibility and environmental friendliness one of the topmost priorities when they consider making their purchases. तो ऐसी अगर कोई ब्रांड है which is found to be violating labor laws, पता लगा अंडर एज बच्चे जो है उनकी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या there are some brands which are indulging in social discrimination, जैसे पीछे हुआ था कि suddenly they found out कि स्टारबक्स से किसी होटल में यूएस में किसी आउटलेट में एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। सो दे सडनली स्टार्ट अवॉइडिंग दोज ब्रांड्स फॉर सम टाइम। इंक्लूसिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, So when these people, they spend their money, when they decide to spend the money, they go with their own values of trust, authenticity and choice in selecting the brand, और कहाँ पैसा खर्च करना है, किन ब्रांड्स को चूज़ करना है, किन को फॉलो करना है, वहाँ पर भी ये अपने जो दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एंड या फिर अपनी इंस्टिंक्ट्स फॉलो करेंगे या फिर अपने जो सर्कल में लोग हैं उनसे पूछेंगे, बट दे आर वेरी वेरी वो ज़्यादा एडवाइस अपने पेरेंट्स से या प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनकी फील्ड के उनसे लेना नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे फील कि दे कैन समहाउ मिसलीड देम। एक और चीज़ जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है दे आर वेरी बिग ऑन रिसाइकलिंग। जैसे अगर उन्होंने कोई ड्रेस खरीदी या कोई कपड़े खरीदे, कुछ चीज़ खरीदी, जिस पर्पस के लिए खरीदी वो पर्पस पूरा हो गया उस चीज़ का, तब भी वो चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो है ना कुछ उसका यूज़ होता रहा है। दे वांट टू रीपर्पस इट, दे वांट टू रिसाइकिल इट एंड दे वांट टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट प्रोडक्ट इवन आफ्टर इट्स यूज्ड अप। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में रिसाइकिल हो वो। दैट इज़ वाई जापानीज ब्रांड्स लाइक यूनिक्लो, म्यूजी, दे आर डूइंग सो वेल, बिकॉज दे ऑलवेज हैव क्लासेस कि आपकी अगर जीन्स एकदम यूज़ हो गई है, फटने वाली है, ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है, तो उसको भी कैसे आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, हाउ कैन यू टेक योर ओल्ड ड्रेसेस एंड डू सम गिफ्ट रैपिंग विद इट। मतलब दे आर ऑलवेज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द एनवायरनमेंट एंड द फुल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उनके माइंड में लग्जरी जो है इट इज़ नॉट अ ब्रांड और अ प्राइस पॉइंट। मिलेनियल्स स्टिल वांट लग्जरी, but they want luxury that is very consistent with their personal values, and they like luxury items which are more democratic than exclusive. पहले क्या होता था कि स्टेटस सिंबल्स दे रिप्रेजेंटेड लग्जरी, दे रिप्रेजेंटेड एक्सक्लूसिविटी। अब उनके लिए क्या है, मिलेनियल्स के लिए, कि फॉर देम स्टेटस इज डिफाइंड नॉट बाय हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट इन सम ओवरली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, बट फॉर देम लग्जरी मीन्स कि हु दे आर एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड इन लाइफ, एंड इट शुड सिग्नल दैट। वो चाहते हैं कि मैं एक्सपेंसिव चीज़ पहनूं, लेकिन वो दैट शुड अगेन जेल विद देयर पर्सोना, इट शुड नॉट मेक देम लुक स्नॉबिश और वेरी नार्सिसिस्टिक। दे लव इंक्लूसिविटी रादर देन एक्सक्लूसिविटी। तो ये सब जो शिफ्ट्स हुए हैं डेमोग्राफिक्स में एंड माइंडसेट्स में आज के हमारे इस जनरेशन में, दे हैव बॉट अबाउट वेरी प्रोफाउंड चेंजेस इन द वे दे शॉप एंड बाय एंड हाउ brands are also repositioning and how
businesses are repositioning themselves. तो एक जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी आई है निकल के, जो मैंने भी पढ़ा था इसको, वो ये देखा था कि मिलेनियल्स जो हैं उनके फ्रेंड्स जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस इन देयर लाइव्स ऑन हाउ दे स्पेंड एंड व्हाट दे पिक एंड चूज. तो उनका जो भी बाइंग डिसीजंस होता है दैट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अ फ्रेंड हु दे लाइक एंड रिस्पेक्ट, नंबर 1. नंबर 2, ब्रांड जो है इट शुड रिप्रेजेंट देम एंड इट शुड स्पीक टू देम. And last में sometimes they also get influenced by some social influencer or celebrity who they feel that they are close to. But they can change their opinion about celebrities and social influencers also very fast. तो इनका क्या होता है कि अगर इनके फ्रेंड ने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया जो उनको लगा कि इट फिट्स देयर पर्सोना, इट जेल्स विद देयर इमेज और वो सस्टेनेबल है, अच्छी क्वालिटी है, देन दे डोंट केयर अबाउट द ब्रांड्स. तो ब्रांड्स डोंट मीन एनीथिंग टू देम इन आइसोलेशन, यू नो. दैट इज़ वाई इनकी जो ब्रांड लॉयल्टी होती है वो कभी टिकती नहीं है किसी एक जगह पे. दे आर मोर देन विलिंग टू पे अटेंशन टू व्हाट द न्यू brands are and what new stories that brand is telling, and is that new story of a brand, is it more aligned with their personal values and the value of their social circle. तो values are very important. So अब मुझे क्या लगता है कि आज की तारीख में जो customers हैं, जो consumers हैं, earlier they used to buy into a brand because of heritage or prestige, maybe instant gratification or entertainment. लेकिन आज की तारीख में जो सबसे important buzzword आ गया वो आ गया है empathy का, कि बहुत सारी जो ब्रांड्स हैं ना दे वांट टू क्रिएट वेरी मीनिंगफुल स्टोरीज दैट ट्रूली कनेक्ट्स विद द कंज्यूमर्स. आज की जो यंग जनरेशन है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे फॉर बिजनेसेस एंड ब्रांड्स टू बिल्ड ऑन एम्पैथी, कंपैशन, कि हाँ हम सुन रहे हैं. रिसेंटली आई वाज वाचिंग दैट नाइकी एड जिसमें उन्होंने दिखाया था कि पैंडेमिक के टाइम पे किस तरीके से नाइकी वाज प्रमोटिंग पीपल हु वर प्लेइंग घर में इंडोर स्पोर्ट्स इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, जब वो घर में बंद थे. और एंड आई सॉ हाउ देयर वाज अ क्लिप देयर अबाउट 2 गर्ल्स जो कि अपने छत पे खड़े होकर टेनिस प्ले कर रही हैं. एक अपने घर की छत पे है और दूसरी लड़की अपने घर के छत पे है. दोनों छत में ऊपर से टेनिस खेल रहे हैं विदाउट बीइंग क्लोज टू ईच अदर. एंड देन दिस एड बिकेम वायरल बिकॉज रॉजर फेडरर केम देयर एंड देन द होल स्टोरी टुक ऑफ. तो दोस्तों, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड हाउ बिजनेस मॉडल कैन बी कंपैशनेट. किस तरीके से कंपनीज जो हैं सिर्फ प्रॉफिट को अपना मोटिव ना बना के कॉस्ट कटिंग एंड अदर चीज़ों को साइड पर रख के हाउ कैन दे एक्चुअली गो अहेड एंड शो टू द कंज्यूमर्स कि येस आवर ब्रांड इज़ कंपैशनेट, दिस इज़ बेनिफिटिंग सोसाइटी एट लार्ज, लोगों का भला कर रही है. और इस वक्त मैंने देखा है कि पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इंडिया में बट पूरे वर्ल्ड में कहा जा रहा है कि द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ द कंपनी should not be just making money, it should also be the betterment of the society. अगर उन्होंने सोसाइटी का ख्याल नहीं रखा तो आज नहीं तो कल वो फेल होने वाले हैं. And there are many good examples of compassionate capitalists in India. Example दूँ तो recently I saw there was some years back Uday Kotak, who tweeted that उनके ऑफिस में ग्लास वाटर जार्स, पानी के ग्लास जार्स और डिस्पोजेबल पेपर कप्स यूज़ हो रहे हैं मीटिंग्स में और हर जगह पे उनके ऑफिस में, जिसकी वजह से उनके ऑफिस के द्वारा 4.3 लाख प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं हर साल सेव हो रही हैं. एंड दे वांट टू मेक इट नेशनल. एंड आई वाज आल्सो रीडिंग अबाउट वन आर्किटेक्ट जिसने इन्फोसिस का सबसे बड़ा कैंपस डिज़ाइन किया था. और उसने बताया था कि जब वो कैंपस डिज़ाइन कर रहा था तो उसको सिर्फ एक लाइन मिली थी उस वक्त के इन्फोसिस चेयरमैन नारायण मूर्ति से अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस न्यू कैंपस. And it was just that you build the most sustainable office building, that's it. So that was the whole idea about sustainability. ताज के जो होटल्स हैं they have removed all the plastic straws. वहाँ पर सब जगह bamboo straws यूज़ हो रहे हैं, So Indian companies के जो board rooms हैं, corporate board rooms हैं, वहाँ पर जो talk है it has changed to more progressive values and environmental consciousness. अब अगर हम लोग देखें इस सब का क्या मतलब है हमारे एमवे बिजनेस में, तो देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमवे कॉर्पोरेशन, एमवे बिजनेस is an extremely compassionate business, caring business, and it's based on progressive values. अभी नहीं, right from 1959. जब से मैं इस बिज़नेस में आया था तब से मैं देख रहा हूँ कि जो हमें चीज़ें अट्रैक्ट करी थी तानिया और मेरे को, वो चीज़ें आज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हैं. मुझे अच्छे से याद है जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो उस वक्त आई हैड जस्ट रेड वन बुक ऑफ रिच डिवॉस, हु इज़ द को-फाउंडर ऑफ एमवे कॉर्पोरेशन, और उनकी बुक का टाइटल ही यही था, कंपैशनेट कैपिटलिज्म. How you can progress in life by helping other people.
और मुझे लगता है कि वो जो किताब में उन्होंने जो लिखा था वो आज की टाइम में ज़्यादा रेलिवेंट लगता है मुझे, बजाय पहले तो था ही, बट आज मेरे को लगता है इट्स इवन मोर रेलिवेंट, इट शुड बी टॉक्ड अबाउट इवन मोर। और मुझे लगता है कि द ओनली रीजन फॉर एमवे बिजनेस लॉन्जिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इज बेस्ड बिकॉज ऑफ दीज वैल्यूज ओनली। मैंने पर्सनली इंटरेक्ट किया है इन दिस एमवे बिजनेस विद एंटरप्रेन्योर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन वेरियस लीडरशिप फोरम्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और मैं मिला हूँ पर्सनली विद सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, थर्ड जनरेशन, इवन वन टाइम फोर्थ जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स से मिला था। सो जस्ट इमेजिन ये जो एंटरप्रेन्योर्स हैं सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के, दे आर बेसिकली inheriting and getting paid from a business which was started by their great grandfather. Can you imagine? इसी वजह से रिच डिवॉस जो है अपनी स्पीच में जब भी बात करते हैं बिजनेस फोरम्स में, अब तो वो चल बसे हैं, बट जब वो बात करते थे अपने स्पीचेस में बिजनेस फोरम्स में, ही यूज्ड टू ऑलवेज टॉक अबाउट ऑन गोइंग इनकम ऑफ एमवे, कि आप इसको अपने बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं, बच्चों के बच्चों को पास ऑन कर सकते हैं। सो ऑलवेज टॉक अबाउट द फैक्ट कि एमवे बिजनेस कंटिन्यूज टू पे ऑन एंड ऑन एंड ऑन इवन आफ्टर यू आर नो मोर। And I think this is the reason for that. The values, the compassionate values on which this business is based. मैं उस वक्त जब नया नया बिजनेस में आया था तो मैं सोचता था कि ये सब जो कह रहे कैसे पॉसिबल है, बट टुडे आई रियलाइज दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द वैल्यूज ऑन विच आवर एमवे बिजनेस मॉडल इज लेड। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है इज अ वर्क ऑफ जीनियस, वेरी मैथमेटिकली साउंड। मैं कहता हूँ कि एमवे का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान इट्स more than a work of genius, more than mathematically sound. I call it a piece of art, a work of art. यहाँ पर खास बात क्या है कि people make in proportion to their efforts and no one can misuse you. No one can use anyone to become rich. It's very, very fair. And the universal appeal that this business has, the plan has towards people of all ages, all walks of life, this is what makes it long lasting. यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ जो मैंने देखा है which makes this business very, very compassionate, and I'm going to pick up some excerpts from the book Compassionate Capitalism. रिच डिवॉस लिखते हैं अपनी किताब में about 16 credos और principles of compassionate capitalism. तो सारे के सारे तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको उसमें से which will you will understand. तो पांचवा जो उनका credo था, प्रिंसिपल था, फॉर एग्जाम्पल इट क्लैरिफाइड दैट द अल्टीमेट एंड ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो अल्टीमेट एंड है वो क्या होना चाहिए। रिच डिवॉस जी कहते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट लोग सिर्फ काम ना करें, लेकिन उनका जो काम है वो मीनिंगफुल भी होना चाहिए। उन्होंने लिखा किताब में कि वर्क इज गुड ओनली इफ इट लीड्स द वर्कर टू फ्रीडम, रिवॉर्ड, रिकग्निशन एंड होप, एंड इफ आवर वर्क इज नॉट सेटिस्फाइंग फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, साइकोलॉजिकली, वी नीड टू एंड दैट वर्क एज क्विकली एज वी कैन एंड बिगिन some new work which is satisfying financially, spiritually, psychologically. मतलब वो ये कहते हैं अपनी किताब में कि काम जो है जब तक फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइंग नहीं है तब तक वो काम जो है मतलब सही नहीं है। और अगर आप ऐसा काम नहीं कर रहे जो ये सब दे रहा है आपको, तो आप फटाफट उस काम को छोड़ के कोई और काम ढूंढो जहाँ पर आपको ये सब मिलता है। जस्ट इमेजिन, सो प्रोग्रेसिव एट दैट टाइम। उनको लगता था कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो काम के जरिए खुश होता है और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता है तो सोसाइटी बिकम्स बेटर। उनके हिसाब से कंपैशनेट कैपिटलिज्म जो डिफाइंड है उसमें काम जो है इट इज़ नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग यू बेसिक नेसेसिटीज, इट इज़ एक्चुअली शुड बी एग्जिस्टेंशियली रिवॉर्डिंग, इट शुड एक्चुअली लीड टू अ बेटर सोसाइटी। और दोस्तों इसी के चलते हम लोग जो है अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा ड्रीम बिल्डिंग करते हैं। ड्रीम बिल्डिंग इज़ अ की स्टोन कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड ऑफ एमवे बिजनेस। और रिच डिवॉस तो खुद अर्ज करते हैं, आग्रह करते हैं एमवे बिजनेस ओनर से हमेशा अपनी किताबों में, स्पीचेस में, कि आइडेंटिफाई करो आपके ड्रीम्स क्या है और उनको अचीव करो। और वो ये कहते हैं कि वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन अपलाइन और अ कोच और मेंटर, एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपलाइन, कोच और मेंटर की क्या है कि वो अपने टीम के लोगों की ड्रीम बिल्ड करें। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी ऑल बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, एंड इट शुड ऑल लीड टू द बेटरमेंट ऑफ द पर्सन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या कहते हैं। उनके हिसाब से कंपैशनेट कैपिटलिज्म, कंपैशनेट लीडरशिप रिक्वायर्स अ सस्टेन्ड प्रोग्राम ऑफ मेंटरशिप। इससे पहले कि हम सक्सीड करें, बिफोर वी कैन सक्सीड एज अ कंपैशनेट लीडर इन एमवे, उनका 10वां प्रिंसिपल या 10वां क्रेडो ये कहता है कि वी मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस मेंटर टू गाइड अस। बिफोर वी कैन सक्सीड एज अ कंपैशनेट लीडर इन एमवे, वी मस्ट हैव एन एक्सपीरियंस मेंटर टू गाइड अस। और मेंटर जो होता है वो कौन होता है? मेंटर हेल्प्स इंडिविजुअल्स, अपने टीम मेंबर्स को, टू बेसिकली
put together the psychological and emotional foundations of dream building. डिवॉस जी कहते हैं कि अपने मेंटर की मदद से विद आवर मेंटर्स हेल्प वी शुड डिजाइन अ प्रोग्राम यूजिंग द बुक्स, ऑडियो, स्पेशल मीटिंग्स, इवेंट्स, एसोसिएशंस with friends and co-workers that will help us to develop a positive, hopeful, productive attitude about our life and its potential. ये उनके वर्ड्स हैं. तो उनकी किताब में लिखा है कि being a mentor is as important as having one. मतलब अगर आपकी लाइफ में प्रॉपर मेंटर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आपको अच्छी मेंटरशिप मिले तो आप एक अच्छे मेंटर बनो. कंपैशनेट लीडरशिप में मेंटरशिप इज ऑलमोस्ट लाइक अ सेक्रेड ड्यूटी which you have to perform to people around you. अगर आपको खुद लाइफ में बेहतरीन मेंटरशिप मिली है तो ये आपका परम धर्म बन जाता है. It becomes your duty that you should become the same kind of mentor for other people. आपको बेसिकली जो आपको मिला है उसको आपको पास ऑन करना है. You have to give people hope. You have to help people get more joy. You just have to help people to realize their dreams and their true potential. अब वो ये कहते हैं कि जब हम दूसरे लोगों की ड्रीम्स पूरी करने में मदद करते हैं, व्हेन वी हेल्प अदर पीपल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, दैट इज़ फार मोर रिवॉर्डिंग देन एक्चुअली फुलफिलिंग योर ओन ड्रीम्स. हम जब दूसरे लोगों की मदद करते हैं उनके ड्रीम्स पूरे हों तो ये ज़्यादा फुलफिलिंग है, ज़्यादा फीलिंग देता है बजाय हम लोगों के खुद के ड्रीम्स पूरे हों. रिच डिवॉस ये कहते हैं कि एक ट्रूली कंपैशनेट सिस्टम में सारा का सारा जो एफर्ट है इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मेकिंग पीपल इंडिपेंडेंट एंड केपेबल ऑफ स्टैंडिंग ऑन देयर ओन 2 feet. उनके हिसाब से एक परफेक्ट कंपैशनेट सिस्टम में सारा का सारा जो एफर्ट होता है वो होता है हम लीडर्स को इंडिपेंडेंट करें कि वो अपने आप अपनी ड्रीम्स जो है पूरे कर सकें. कुछ लीडर्स जो है वो क्या करते हैं कि अपनी टीम में लोगों को अपने पर टोटली डिपेंडेंट कर देते हैं, और उस केस में क्या होता है कि एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, इट सिंपली बिकम्स एन एक्सक्यूज टू कंट्रोल पीपल एंड मेक देम डिपेंडेंट रादर देन मेक देम इंडिपेंडेंट. इसीलिए मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप है इन अ कंपैशनेट लीडरशिप सिस्टम, the relationship between a distributor, business owner, entrepreneur and his upline is more similar to that of a master and an apprentice. यहाँ पर जो लीडर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है अपने टीम में लोगों को हाउ टू बिकम बेटर. इसी मेंटरशिप प्रोग्राम की वजह से हम लोग कहते हैं कि आवर बिजनेस बिकम्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम इन आवर बिजनेस इज नॉट जस्ट फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, वी टॉक अबाउट फ्रीडम टू बी हैप्पी. वी टॉक अबाउट हाउ freedom means not just money, it also means self-mastery, self-actualization, to chase happiness without worrying about money and time. ये सारे आइडियाज जो उन्होंने बताए हैं रिच डिवॉस अपनी बुक में, ये मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दीज आर बीइंग कॉपीड टुडे एंड दिस इज बीइंग एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अ लॉट इन द मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड बोर्ड रूम्स राइट नाउ. और ये ऑलरेडी हमारी हेरिटेज है. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलवेज ग्रोन अप विद इन दिस बिजनेस. और मैंने तो यही देखा है कि एमवे हैज़ ऑलवेज ट्रीटेड देयर बिजनेस ओनर्स वेरी फेयरली एज बिजनेस पार्टनर्स. मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं इस बिज़नेस में आया था तो आई हैड हर्ड अ स्टोरी अबाउट हाउ इन द 1980s एमवे वाज ऑपरेटिंग इन जापान. तो उनके सारे प्रोडक्ट्स जो थे जापानीज़ मार्केट में वो यूएसए से बन के जापान जाया करते थे. एंड बिकॉज ऑफ द करेंसी अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन देयर वाज अ टाइम व्हेन सडनली द येन का जो एक्सचेंज रेट था अगेंस्ट डॉलर वो चेंज हो गया. And as a result, what happened was that the products being sold in Japan, they got Amway a lot of profit, much more. It was like a windfall. So at that time, what happened was that Amway actually decided कि look, ये जो profit हमारे पास suddenly आया है because of currency fluctuation, what we expected to make from the Japanese market and what we got was different. तो उन्होंने क्या किया कि जो एक्स्ट्रा पैसा उनके पास आया हुआ था, उनको लगा कि ये पैसा आया तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की मेहनत से ही है. तो उन्होंने क्या किया कि उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था उन्होंने वापस डिस्ट्रीब्यूटर्स को बांट दिया. एंड दैट वाज नॉट इवन इन द प्लान. एंड पीपल गॉट बिग चेक्स विदाउट नोइंग कि कहाँ से आया. एंड देन कंपनी सेड कि दिस इज बिकॉज द कंपनी वांट्स टू शेयर दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम देम. सो उससे क्या हुआ, लोगों का फेथ बढ़ गया कि लाइक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द एमवे फैमिली. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं. एंड उनकी जो डेडिकेशन है कंपनी की टुवर्ड्स सेविंग द एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो अनपैरेलल्ड. They have always been using concentrated products for reducing the carbon footprints. Their cleaning products have all got highly biodegradable surfactants. उनकी जो packaging है, it is also made from post-consumer recycled plastic, which is totally recyclable and very highly reusable. उनकी जो भी छोटी मोटी पेपर पैकेजिंग होती है, it's always made from recycled paper and it's printed with vegetable oil-based inks. आपको पता ही है कि Amway received the United Nations Environment Protection Program Achievement Award in 1989, and it's the only second company till that time to have won that award.
And this award they got for promoting environmental education and awareness and for encouraging the youth to make environment a priority. एमवे को यूनाइटेड अर्थ ऑनर मिला 1993 में, and they got that for the environmental leadership and humanitarian excellence. They got the UNESCO Transpolar Medal for the outstanding service to the people of Arctic region. पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है नहीं पता है कि 1989 में there was a Valdez oil spill जहां बहुत सारा क्रूड ऑयल 11 मिलियन गैलन्स ऑयल स्पिल हो गया था बीचेस में, जगह जगह पे बहुत सारे पशु पक्षी, बहुत सारा ऑयल फैल गया था. इट वाज अ बिग डिजास्टर. उस वक्त मुझे याद है बैरल्स अपॉन बैरल्स बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी LOC की, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर की भेजी गई थी फॉर द क्लीन अप एफर्ट, बिकॉज दैट इज एन एक्सीलेंट एमल्सिफायर ऑफ ऑयल. और इतना सारा एमवे का प्रोडक्ट्स उस वक्त यूज़ हुआ था LOC वहाँ पर ऑयल स्पिल को क्लीन करने के लिए, क्लीन अप एफर्ट्स में. बट एमवे नेवर टू क्रेडिट फॉर इट बिकॉज दे फेल्ट इट वॉज अ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट. तो दोस्तों यहाँ मैंने देखा है बहुत सी बार कि एमवे बहुत सारे काम करता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग बैक इन रिटर्न. अब ये सब आपको सब बताने का पर्पस क्या है? बिकॉज एल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड कि एनीबडी कैन नो बट द पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड. उन्होंने एक बात कही थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि पता सबको लग सकता है लेकिन समझना ज़रूरी है. आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि राइट नाउ द वैल्यूज़ ऑफ एमवे बिजनेस एंड द एमवे मॉडल जिस पे हम लोग खड़े हुए हैं, यू नो, दे हैव डीप रूट्स. और ये वैल्यूज़ आज के टाइम में ज़्यादा रेलिवेंट हैं. बट हम लोग इन सब के बारे में बातें नहीं करते बहुत ज़्यादा. बट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट दीज वैल्यूज़ इन फ्रंट ऑफ द पीपल इन आवर टीम. यू नो, रिच डिवॉस का एक स्टेटमेंट था कि व्हेन कंपैशन इंस्पायर्स फ्री एंटरप्राइज. जब कंपैशन, केयरिंग एटीट्यूड जो है वो फ्री एंटरप्राइज को प्रेरित करता है तब प्रॉफिट्स फॉलो. देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्प्रूव. उसके वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी इंप्रूव होती है और ये जो धरती है, दिस अर्थ, इट बिकम्स रिस्टोर्ड एंड रिन्यूड. यू नो, सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को होप दें ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी शुड इग्नोर द सिनिक्स. हमारे जो नेसेयर्स हैं उनको हम इग्नोर करें, वो तो हमेशा रहेंगे रहेंगे. और जब भी हमसे लोग पूछते हैं, जब भी मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ, तो बहुत सी बार हम लोगों का आंसर ये होता है कि हाँ आप कर सकते हो, बिकॉज आई बिलीव इन यू, मैं आप में विश्वास रखता हूँ. बट आई ऑल्सो टेल पीपल कि यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू, बट आई विल ऑल्सो हेल्प यू एंड इवन बेटर. मैंने किया हुआ है ये सब, आई हैव डन इट बिफोर यू, सो आई विल बी विद यू ऑल द वे थ्रू. एंड दैट इज वॉट माई मैसेज टू यू इज दिस कि नो गाइज, go ahead and build this business, make your dreams come true, then help other people to make their dreams come true. Do it first, then help other people to do it, and also go ahead and believe in that. Thank you, love you very much, talk to you soon. Bye for now.